Hello everyone, this is the flashcard series that I am resuming for you people, and let's just revise the flashcards that are important for NEET as well as INICT in a quick manner. So that will help you in memorizing large chunks of information in a short duration of time. So the investigation of choice for urinary tract obstruction, to find the urinary tract obstruction, the investigation of choice is technetium 99M MAC 3 scan. Technetium 99M MAC 3 scan is the investigation of choice to find out whether there is ureteric obstruction or not. Now the for the vesico-ureteric reflux we do micturating cystourethrogram, that is the investigation of choice. In case of G6PD deficiency, the important points that you need to remember is G6PD deficiency is X-linked recessive disease, more common in males as compared to females. The important finding in your G6PD deficiency is of Heinz body. Heinz body are present, and Heinz body they stain with the help of supravital staining, and there is intravascular as well as extravascular hemolysis in G6PD deficiency. The bite cells, spherocytes and blister cells are found in the peripheral smear. And remember, there is a anti-TB drug that leads to G6PD deficiency. Now G6PD-B is the most common type that is found, and there is G6PD Mediterranean type that is the most severe type of G6PD deficiency. Now moving to the next flashcard on mutations that are found in case of beta thalassemia. In beta thalassemia, nonsense mutation is most common, and in nonsense mutation we usually find a splicing mutation, then promoter mutation, and we have chain termination. जब स्प्लाइसिंग म्यूटेशन मिलती है बीटा थैलेसीमिया में, तो तुम्हारी बीटा पॉजिटिव वाली चेन्स मोर फ्रीक्वेंटली मिलती हैं एज कम्पेयर टू बीटा नॉट. अगर प्रमोटर म्यूटेशन मिलती है तो बीटा पॉजिटिव वाली चेन ज़्यादा कॉमनली मिलती है, एंड चेन टर्मिनेशन में बीटा नॉट आर फॉर्म्ड मोर. नाउ म्यूटेशंस इन केस ऑफ बीटा थैलेसीमिया दैट आर फाउंड इन इंडियन पॉपुलेशन में IVS 156 1Q BP deletion, then IVS 1 codon 41 42 and codon 89 frameshift mutations. These are more commonly found in Indian population. Another thing that you need to remember about thalassemia, another important point is जो बीटा बीटा वाला कॉम्बिनेशन है वो नॉर्मल कॉम्बिनेशन है. उसमें हीमोग्लोबिन लेवल पेशेंट का यूजली 14 to 17 ग्राम पर डेसीलीटर के बीच में होगा. अगर एक चेन बीटा है, यूजली तुम्हें पता है कि अडल्ट हीमोग्लोबिन में अल्फ़ा 2 बीटा 2 होता है, तो ये दो बीटा चेन्स की बात कर रहा है. इनमें से अगर दोनों बीटा चेन्स ऐसी हैं तो दैट मीन्स द पेशेंट इज़ नॉर्मल एंड 14 to 17 ग्राम पर डेसीलीटर उसमें हीमोग्लोबिन है. अगर एक चेन बीटा है, एक चेन बीटा पॉजिटिव है, मतलब पेशेंट को थैलेसीमिया माइनर है या थैलेसीमिया ट्रेट बोल लो, इसमें भी हीमोग्लोबिन का लेवल मोर देन 10 ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है. देन वी हैव बीटा पॉजिटिव, तो उसमें दोनों चेन तुम्हारी बीटा पॉजिटिव हैं, एंड इसको बोलते हैं हम मॉडरेट थैलेसीमिया या थैलेसीमिया इंटरमीडिया बोलते हैं. ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन यूजली 6 to 7 ग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है, एंड blood transfusion is given to such patients. Then we have beta naught beta plus combination and beta naught combination that come under severe thalassemia, जो कि थैलेसीमिया मेजर में जाता है, और थैलेसीमिया मेजर में तुम्हारा हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 6 ग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट लर्न अबाउट द बीटा थैलेसीमिया मेजर. बीटा थैलेसीमिया मेजर में कुछ फाइंडिंग्स मिलती है, लाइक योर चिपमंक फेसिस इज देयर. व्हाट इज चिपमंक फेसिस? चिपमंक फेसिस में फ्रंटल बॉसिंग हो जाती है एंड माल ओक्लूजन हो जाता है टीथ्स का. देन स्कल की बात करें तो स्कल में वी गेट क्रू कट हेयर ऑन एंड अपीयरेंस. एंड बीटा थैलेसीमिया मेजर की इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि तुम्हारा बीटा थैलेसीमिया मेजर में MCV विल डिक्रीज, MCH विल डिक्रीज, MCHC विल डिक्रीज, और पेरिफेरल स्फीयर में तुम्हें टारगेट सेल्स या कोडोसाइट्स मिलेंगे, मेसोफिलिक स्टिपलिंग मिलेगी, रेटिक काउंट इंक्रीज हो जाएगा, एंड नॉर्मोब्लास्ट विल बी प्रेजेंट. सो दिस वाज अबाउट योर बीटा थैलेसीमिया मेजर. अब जो 4 अल्फा जीन्स होते हैं बीटा थैलेसीमिया के, वो क्रोमोसोम 16 पे होते हैं, और जो बीटा चेन्स वाली दो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे होते हैं. ये क्रोमोसोम इंपॉर्टेंट है, पूछे गए एग्जाम में. अल्फा थैलेसीमिया होता है जीन डिलेशन की वजह से, और बीटा थैलेसीमिया यूजली होता है जीन म्यूटेशन की वजह से, और वो ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू अल्फा थैलेसीमिया. अब याद करो, अडल्ट हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें अल्फ़ा 2 बीटा 2 होता है.
फीटल हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें अल्फ़ा 2 गामा 2 होता है, और एक होता है HbA2 जिसमें अल्फ़ा 2 डेल्टा 2 होता है। नाउ दिस अडल्ट हीमोग्लोबिन को मतलब जो अडल्ट के अंदर हीमोग्लोबिन है तो उसमें से 95% तो HbA होता है, फिर बाकी का 1% उसका HbF होता है, और बाकी का 3% HbA2 होता है. ओके, सो दीज आर सम important points you need to remember about hemoglobin. Now let's just learn about the extensor muscles present in your upper limb. So there are some superficial extensors and deep extensors. Superficial extensors में आती है extensor digitorum minimi, extensor carpi ulnaris, extensor digiti communis and extensor carpi radialis brevis. Okay, then deep extensors में we have extensor indicis, then abductor pollicis longus, supinator, extensor pollicis longus and extensor pollicis brevis. These are the deep extensors. So deep extensors में extensor pollicis longus, extensor pollicis brevis and extensor indices, and we have abductor pollicis longus and supinator. These are all deep extensors. And superficial extensors में you need to remember कि तुम्हारी extensor digiti minimi है, extensor carpi ulnaris है, extensor digiti communis है and extensor carpi radialis brevis है. Now this was these are the flashcards that I have covered in this page. Then coming to second page, so remember that the heart sound S3 और S4 के बीच में difference देखते हैं. तो S3 को बोलते हैं हम वेंट्रिकुलर गैलप रिदम, ठीक है. S3 को बोलते हैं हम वेंट्रिकुलर गैलप रिदम. वेंट्रिकल विल प्रोड्यूस S3. जब भी तुम्हारा वेंट्रिकल्स में ब्लड रश करेगा तो S3 विल बी प्रोड्यूस्ड, एंड S3 इज प्रोड्यूस्ड जब तुम्हारा रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है, ठीक है. तो जब भी जिस भी कंडीशन में वेंट्रिकल्स डायलेट हो जाएंगे, द डायलेटेड वेंट्रिकल्स विल गिव राइज टू S3, बिकॉज तुम्हारा रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी, ब्लड जाके तुम्हारा वेंट्रिकल्स में टकराएगा और S3 सुनाई देगी, ठीक है. सो वेंट्रिकुलर गैलप रिदम इज S3. अर्ली डायस्टोलिक फेज में मिलती है क्योंकि अर्ली डायस्टोलिक फेज में ही तुम्हारी रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग चलती है. नाउ S3 विल बी मोर प्रोमिनेंट इन केस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एंड रिमेंबर दैट S3 जो है वो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी और कॉल पल्मोनरी जैसे कंडीशंस में मिलती है. S4 की बात करें तो S4 इज़ ड्यू टू एट्रियल किक. जब तुम्हारे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बहुत ज़ोर से तो एट्रियल किक मिलती है, एंड S4 सुनाई देती है लेट डायस्टोलिक फेज में, लेट डायस्टोलिक फेज में. एंड S4 सजेस्ट कि कोई ना कोई आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है, या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, या लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी है, या एओटिक स्टेनोसिस है. तो आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन को S4 सिग्निफाई करती है, एंड S4 इज यूजली एब्सेंट इन एट्रियल फिब्रिलेशन. नाउ S4 इज सीन इन योर HOCM, इट इज सीन इन हाइपरटेंशन, इट इज सीन इन एओटिक स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस एंड पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन. तो ये हो गया आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन. नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड का लेवल अडल्ट्स में C1 to L1 तक होता है, और नियोनेट्स में ये लेवल L3 तक होता है, ठीक है. तो नियोनेट्स में काफ़ी नीचे तक जाती है स्पाइनल कॉर्ड, बट अडल्ट्स में थोड़ा सा पहले ही खत्म हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड L1 के लेवल पे. नाउ स्पाइनल कॉर्ड में कुछ सर्वाइकल एनलार्जमेंट मिलते हैं. C3 और T2 तक एक एनलार्जमेंट होता है, सर्वाइकल एनलार्जमेंट. C3 से लेकर T2 तक एक्सटेंड करता है. लंबर एनलार्जमेंट L1 से लेकर S3 तक एक्सटेंड करता है. फिर बात आती है क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस की. क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस की अगर बात करें तो क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस मिलता है एनिमल हुकवर्म में, दैट इज़ योर एस्कैरिस ब्राजिलेंसिस एंड एस्कैरिस कैनिडम. इनमें मिलता है क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस, ठीक है. ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस का? हम देते हैं एल्बेंडाजोल एंड आइवरमेक्टिन. कितना देना है? 1 to 2 सेंटीमीटर, 1 to 2 जो स्पीड है क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस की. क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस स्किन के थ्रू माइग्रेट करेगा, कितनी स्पीड पे? 1 to 2 सेंटीमीटर पर डे. फिर एक होता है लार्वा करेंस. लार्वा करेंस थोड़ा सा अलग है. लार्वा करेंस तुम्हारा स्ट्रोंगेलॉइड्स स्टर्कोलालिस में मिलता है, ठीक है. स्ट्रोंगेलॉइड्स स्टर्कोलालिस में तुम्हारा लार्वा करेंस मिलता है. अब लार्वा करेंस की इंपॉर्टेंट बात है कि ये रेसिंग लार्वा होता है, 5 सेंटीमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, ठीक है. क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस की स्पीड स्लो थी, बट तुम्हारा लार्वा करेंस काफ़ी तेज स्पीड से चलता है. ड्रग ऑफ चॉइस इसके लिए भी आइवरमेक्टिन है. दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस एंड लार्वा करेंस. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड में देखो एंटीरियर हॉर्न होता है और पोस्टीरियर हॉर्न होता है. एंटीरियर हॉर्न में तुम्हारा बेसिकली
there is this medial nuclei, there is intermediate nuclei, there is lateral nuclei, and we have this intermediate nucleus. Then we have posterior horn में substantia gelatinosa, we have nucleus proprius and nucleus dorsalis. ये हो गया तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड. अब देखो जो टेलेंसेफेलॉन है, हमने जब ब्रेन की डेवलपमेंट पढ़ी थी तो ब्रेन, प्रिमिटिव ब्रेन वॉज डिवाइडेड इंटू टेलेंकेफेलॉन. 5 वेसिकल्स थी उसमें. 5 vesicles were there in the embryological brain, that is telencephalon, diencephalon, mesencephalon, metencephalon, myelencephalon. जो telencephalon है वो तुम्हारा cerebrum और corpus striatum का ventricle मतलब फाइनली बनाता है cerebrum और corpus striatum को. diencephalon तुम्हारा thalamus, hypothalamus और neurohypophysis को बनाता है, optic stalk को बनाता है. mesencephalon तुम्हारा mid brain को बनाता है. metencephalon तुम्हारा pons और cerebellum को बनाता है. myelencephalon तुम्हारा medulla oblongata को बनाता है. then comes your बाइकॉन्केविटी ऑफ आरबीसी. जो बाइकॉन्केविटी होती है आरबीसी के अंदर, दिस इज द आरबीसी. आरबीसी के अंदर जो बाइकॉन्केविटी होती है वो बेसिकली स्पेक्ट्रिन प्रोटीन की वजह से होती है. एंड तुम्हारा अगर हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस होगा तो हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस में तुम्हारा एंकायरिन का डिफेक्ट होता है, ये याद रखना. स्पेक्ट्रिन नहीं, तुम्हारा एंकायरिन का डिफेक्ट होता है हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस में. हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है तुमने कि स्पेयर शेप्ड आरबीसी हो जाएंगे, इरिथ्रोस्टासिस हो जाएगा, एक्स्ट्रा वैस्कुलर हिमोलाइटिक अनीमिया मिलेगा. हेरिडिटरी स्पीरोसाइटिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन, रेटिकुलोसाइट्स बढ़ जाएंगे. एमसीएच जो मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन है वो तो नॉर्मल रहेगा, बट जो वॉल्यूम होगी हीमोग्लोबिन की वो कम हो जाएगी और एमसीएच से बढ़ जाएगा. दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग. एंड ectocytometry is the best test to test your hereditary spherocytosis. Okay, next we will learn about okay, some PSM flashcards are coming, so that we will cover in the next video.